Hello everyone, I am Shambhavi from Progressive Science Education and today I am going to complete the first chapter of class 8 that is crop production and management. So अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है. Growing plants for getting food and other useful products is called agriculture. फिर हम लोग ने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on the large scale, it is called crops. For example, rice, wheat, sugarcane, etc. हम लोग ने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में देखा था. फूड ग्रेन, कमर्शियल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर. उसके बाद हम लोग ने खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स के बारे में देखा था. फिर कई सारी एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती है जिससे हमारी क्रॉप्स अच्छी हो, वो हमने देखा था. जैसे कि हमें सॉइल को देखना पड़ता है और हमें सीड्स को देखना पड़ता है. तो चलिए अब हम उसके आगे स्टडी करते हैं. नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. Manure and fertilizer are added to the soil in the form of nutrition for the healthy growth of the plant. Soil provides mineral and nutrition to the crops essential for their growth. अब हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र को अपनी क्रॉप्स में क्यों डालते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइज़र से क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है जिससे प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ हो. Soil provides mineral and nutrition to the crops essential for their growth. Soil फिर उसको डालने से क्या होता है, सॉइल ऐसे मिनरल और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाती है जो प्लांट्स को एसेंशियल होते हैं ग्रो करने के लिए. इन सर्टेन एरिया फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर अ क्रॉप इन द सेम फील्ड. कई जगह आपने देखा होगा कि अगर हम एक फील्ड फार्मर्स कहीं एक फील्ड पे अगर कोई प्लांट लगा देते हैं, उसके बाद वो दोबारा से उसी जगह पे दूसरे प्लांट्स भी लगा देते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि द फील्ड हैड और फेलो. क्योंकि फील्ड फिर तब भी उपजाऊ रह पाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मैन्योर और फर्टिलाइजर के ऐड करने से ऐसा होता है. दिस मेक्स द सॉइल पोअरर इन sections. Therefore, farmers had to add manure to the field to replenish the soil with nutrition. This process is called manuring. इसकी हेल्प से क्या होता है, सॉइल पोरर रह पाती है, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहता है, सॉइल फर्टाइल रह पाती है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्योरिंग. सो इसे नोट डाउन करते हैं. देखिए मैन्योरिंग. ओके, मैन्योरिंग. तो मैन्योरिंग हमने क्या बताया कि farmers have to add manure to the field. Farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrition. To replenish the soil with nutrients. It is called manuring. Okay. Now, manure is an organic substance, decomposition of the plants or the animals' waste. Farmers dump plants and the animal waste in the pits at the open place and allow it to decompose. The decomposition takes place by the action of some microorganism. The decomposed organic matter is used as manure. अब देखिए मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है. देखिए जब प्लांट या एनिमल जो भी उनका वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है, आपने देखा होगा विलेजेस में उसको डिकम्पोज किया जाता है, उसी से मैन्योर का फॉर्मेशन होता है. फार्मर्स टर्म
plants and animals waste in the pits at the open place and allow it to decompose. वो उसे खुली जगह में plants और animal waste को रख देते हैं, decompose होने देते हैं open place में. Okay, the decomposition takes place by the action of some microorganisms. अब decomposition होता कैसे है? With the help of some microorganisms. कुछ microorganisms होते हैं जो plants और animal waste को अच्छे से decompose करने में help करते हैं. The decomposition takes place by the action of some microorganisms. The decomposed organic matter is used as manure. और वही decomposed organic matter को हम कैसे यूज़ करते हैं? Manure की तरीके से. अब जैसे हम एक एक्टिविटी ले लें. To observe the effect on the growth of the plant on adding manure in the soil. Material required: 3 dissolvable glasses or 3 beakers, some germinated moons or the grain seeds, a small quantity of farm manure, urea, soil and water. Procedure: take 3 glasses of the beaker and mark them as A, B and C. Let's do. हमने 3 glass of plant 3 pots लिया, glass लिया. देखिए, let's assume this one. Okay. This one हमने 3 लिया. हमने 3 लिया. उसको हम लोग ने क्या मार्क कर दिया? A, B and C. नाउ अब देखिए आगे क्या करना है. Now put few germinated seeds in each glass and cover with the soil. अब हमने क्या किया? कुछ germinated seeds को लिया और इन तीनों में डाल दिया. कुछ seeds को germinated seeds को लिया और इन तीनों में डाल दिया. germinated seeds को इन तीनों में डाल दिया और हमने उसमें सॉइल फिल कर दी. अब हमने सॉइल भी डाल दिया इसके अंदर, सैंड भी फिल कर दी, सॉइल भी फिल कर दी. नाउ ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास. अब हम इन तीनों में क्या ऐड करेंगे? वाटर. अब हमने वाटर तीनों ग्लासेस में डाल दिया. नाउ put these glasses at the place where they can get proper sunlight. अब आप इन तीनों ग्लासेस को ऐसी जगह प्लेस करो जहाँ पर उनको प्रॉपर सनलाइट मिल पाए. ओके, सनलाइट. ठीक है. water them regularly and observe their growth. अब हम तीनों प्लांट्स को अच्छे से वाटर करेंगे रेगुलरली और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर 1 week. व्हाट डू यू सी? हमने 1 week के बाद प्लांट्स को, इन लोगों को तीनों को देखा तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्जर्वेशन. द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इज बेस्ट इन ग्लासेस बी एंड सी. तब हम देखते हैं कि ग्लास बी और सी में प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं. ऐसा क्यों होता है? ऑब्जर्वेशन. नाउ कंक्लूजन. मैन्योर एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल दैट रिजल्ट इनटू द. अब हमने देखिए, हम फिर से आपको बताती हूँ कि हमने 3 ग्लासेस लिया, A, B एंड C. 3 ग्लासेस लिया A, B एंड C और हमने क्या किया? तीनों में सीड्स डाल दिए, सीड्स जर्मिनेटेड सीड्स डाल दी और तीनों में हमने सैंड डाल दिया. ओके, उसमें हमने मैन्योर ऐड कर दिया. लेट्स टेक मैन्योर. ओके, मैन्योर हमने खाली B में और C में ऐड किया, हमने A में नहीं ऐड किया. हमने खाली B और C में मैन्योर ऐड किया. उसके बाद हमने उसे पानी डाला. हम 1 week के बाद क्या देखा? जो B और C का प्लांट है वो ज़्यादा अच्छा ग्रो किया है. B और C का जो प्लांट है वो ज़्यादा अच्छा ग्रो किया है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैन्योर एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल दैट रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. क्योंकि मैन्योर जब प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑर्गेनिक मैटर ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो उसे अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है. इसीलिए इसमें अच्छी तरीके से प्लांटेशन हो पाई है. बी एंड सी में हमने मैन्योर ऐड नहीं किया था तो इसमें अच्छी प्लांटेशन नहीं हो पाई. नाउ फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट रिच chemical substance. They are specific in their contents. The most commonly used fertilizer are NPK fertilizer. These are rich in nitrogen, phosphorus and potassium, urea, ammonium sulfate, calcium ammonium nitrates, superphosphates and some other fertilizers.
Chemical fertilizers are popular with the farmers as they are easy to use and help to get a better crop yield. However, excessive use of fertilizer should be avoided as they cause water and soil pollution. देखिए, अभी हम लोग ने मैन्योरिंग देखा कि मैन्योरिंग कैसे की जाती है, उससे क्या क्या प्रॉफिट होता है. अब हम देखने जा रहे हैं फर्टिलाइजर. ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है. तो फर्टिलाइजर जो होता है, फर्टिलाइजर इज अ केमिकल सब्सटेंस. ओके, केमिकल सब्सटेंस. अब फर्टिलाइजर को डालने से क्या हो रहा है कि क्रॉप हमारी और भी ज़्यादा अच्छी यील्ड हो रही है. अगर हम फर्टिलाइजर को डालते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर एक तरीके का वर्क करता है, तो फर्टिलाइजर से क्या होता है और भी अच्छी हमारी क्रॉप्स हो जाती हैं. तो अगर हम फर्टिलाइजर डालें तो हम देख रहे हैं कि हमारी क्रॉप्स और अच्छी हो जा रही है. लेकिन ज़्यादा यूज़, फर्टिलाइजर को ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन, soil pollution and erosion, or you can say erosion. Now, water and cause water and soil pollution. So, किसका यूज़ बेस्ट हुआ, मैन्योर का या फर्टिलाइज़र का? देखिए, मैन्योर का यूज़ करने से आपकी क्रॉप तो अच्छी हो रही है, लेकिन फर्टिलाइज़र की यूज़ करने से और भी ज़्यादा अच्छी हो रही है. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि व्हेन वी यूज़ फर्टिलाइज़र देन इट्स कॉज more extent use of fertilizer cause water and soil pollution. Okay, now move to the next. The difference between fertilizer and chemicals are listed below. अब फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है? ओके, लेट्स सी. If you want, so note it down. It is important and mainly asked in exams. So if you want, so please note it down. Okay. Now, difference between manure and fertilizer. Now, अब फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट. फर्टिलाइजर क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट. यू कैन ऐसे राइट कर सकते हैं आप. फर्टिलाइजर इधर डाल दीजिए, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. तो फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट. इनऑर्गेनिक सॉल्ट. बट मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स रिज्यूम्स. तो लेकिन ये देखिए, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, यानी कि ये केमिकल, यू नो, इनऑर्गेनिक है. बट मैन्योर जो है, मैन्योर एक प्योर नेचुरल सब्सटेंस है. मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung, by the decomposition of cattle dung, human waste and plants receipts. Human waste and plant ना. हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो मैन्योर है वो तो जो फर्टिलाइजर है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, बट मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स रिज्यूम्स. ना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. नेक्स्ट पॉइंट,
फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड किए जाते हैं इन फैक्ट्रीज. बट मैन्योर क्या होता है? मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट. इन फील्ड्स बाय एनिमल एंड प्लांट वेस्ट. Now, a fertilizer does not provide any humus to the soil. फर्टिलाइजर जो होता है वो हमारी क्रॉप्स तो अच्छी करता है पर बिल्कुल भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को. डोंट प्रोवाइड ह्यूमस, नॉट प्रोवाइड ह्यूमस. नेक्स्ट पॉइंट है मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. और ये लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को. फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. फर्टिलाइजर जो होता है वो प्लांट न्यूट्रिशन में बहुत ही रिच होता है बट मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स. ये जो होता है वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स. लाइक नाइट्रोजन, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, and potassium. But manure is relatively less rich in plants nutrients. Okay, now advantage of manure. The organic manure is considered better than fertilizer. This is because of the following reason. It enhances the water holding capacity of soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases become easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of soil. अब आप देखते होंगे कि इन जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेटर क्यों होता है? देखिए बेटर होता है इसलिए क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है सॉइल की. ये सॉइल को पोरस रखता है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो पाते हैं. ये नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे मैंने आपको बताया था अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स, इनको भी मतलब प्रेजेंट करता है. improves the texture of the soil और soil के texture को भी improve करता है. Thus manure is considered better than fertilizer. इसीलिए हम कहते हैं कि manure जो होता है वो fertilizer से ज़्यादा अच्छा होता है. It replaces the soil. Another method used by farmers to replace the soil is crop rotation. देखिए अब जो अनदर मेथड जो फार्मर्स के द्वारा दूसरा मेथड यूज़ किया जा रहा है टू रिप्लेस दी सॉइल को रिप्लेस करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन. दी अनदर मेथड यूज्ड बाय दी farmers to replenish the soil is called crop
rotation. Okay. In this method, different crops are grown alternately. After the harvesting, the farmers grow legumes, pulses. Legumes have the bacteria rhizobium in their root nodules. They fix the atmospheric nitrogen, thus legumes help in the replenishment of nitrogen. More and more farmers are adopting this method to encourage organic farming. देखिए, अब जो मेथड फार्मर्स द्वारा सॉइल को रिप्लेस करने के लिए वो है सॉइल रोटेशन। इस मेथड में क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप जितने भी क्रॉप्स उनको अल्टरनेटली ग्रो किया जाता है। आफ्टर द हार्वेस्टिंग द फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स पल्सेस, और हार्वेस्टिंग करने के बाद वो फार्मर्स जो होते हैं वह लेग्यूम पल्सेस को ग्रो करते हैं। लेग्यूम्स हैव द बैक्टीरिया राइजोबियम, यू नो ये लेग्यूम्स में एक बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम in their root nodules. They fix the atmospheric nitrogen, thus legumes help in the replenishment of nitrogen. More and more farmers are adopting this method to encourage organic farming. अब next topic हमारा है irrigation. Okay, come to the next topic, that is irrigation. Irrigation. Now, water is important for the proper growth and development of flowers. You know कि water सबसे ज़्यादा important होता है plants की growth के लिए. Fruits and seeds of the plant absorb water by the roots along with the water, minerals and fertilizer, and also absorbed. Plants contain nearly 90% of the water. Water is essential for the plants for the following reasons. जर्मिनेशन विदाउट वाटर कैन नॉट बी टेक प्लेस, जर्मिनेशन बिना वाटर की सीड जर्मिनेशन तो हो नहीं पाता है. न्यूट्रिशन कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विदाउट वाटर. वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट. द supply of water to the crops of different intervals is called irrigation. The time and the frequency of irrigation varies from crops to crop, soil to soil and सीजन टू सीजन. अब देखिए, वाटर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वाटर होता है. वाटर क्या हेल्प करता है, सीड्स के जर्मिनेशन के लिए हेल्प करता है. जो जब सनलाइट ज़्यादा हो जाती है तो सॉइल को नमी पहुंचाने में भी वाटर हेल्प करता है, और बहुत सी चीज़ों में वाटर हेल्प करता है. तो हमें जो सप्लाई ऑफ वाटर होता है क्रॉप्स में उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन. ओके, नाउ अब हम आगे देखते हैं. जैसे कि wheat cultivation requires a lot of water at different stage on its growth, while paddy requires standing water. Similarly, in the summer, frequency of irrigation is higher due to increased rate of evaporation. In our country, rain is the main source of the irrigation. The other sources of irrigation are wells, tube wells, ponds, lake, rivers, dam and canals. Now, traditional method of irrigation. इसके बाद अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि व्हाट इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, देखिए, द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन्स फॉर taking it to the field with the help of cattle or humans. This method are cheaper but less efficient. Okay. So this traditional method I will tell you in the next video. तब तक के लिए bye bye and take care.